میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے شو میں وقتاً فوقتاً انتہائی اہم سوشیو اکنامک ایشوز کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ایشوز بھی سامنے آتے ہیں جو بظاہر غیر اہم ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کی اہمیت حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ الیکٹرانک ویسٹ کی پاکستان میں بھرمار انہی ایشوز میں سے ایک ہے جس کی طرف فی الحال حکومت وقت کا دھیان بھی نہیں گیا، ہمارے دانشوروں کا بھی اور نہ ہی میڈیا کا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف عوام بلکہ خواص بھی اس مسئلے سے ناآشنا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ الیکٹرانک ویسٹ دراصل ہے کیا۔ ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کی وجہ سے الیکٹریکل اور الیکٹرانک ڈیوائسز، گیجٹس دن بدن ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ 6 ماہ کے اندر اندر نئی جنریشن آ جاتی ہے، پرانے ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں، یوزلیس ہو جاتے ہیں۔ اور ویسٹ کا تو یہ اسلوب ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی اگر 10 دن بھی پرانی ہے تو وہ اسے متروک قرار دیتے ہیں، اسے خریدنا یا استعمال کرنا باقاعدہ کسرِ شان سمجھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال 4 کروڑ ٹن کا الیکٹرانک ویسٹ پیدا ہو جاتا ہے، جسے تلف کرنا انتہائی اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ بڑے ممالک چالاکی یہ کرتے ہیں کہ سستے داموں یوزڈ ریفربشڈ کمپیوٹرز، موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر لاتعداد الیکٹریکل اور الیکٹرانک گیجٹس ہم جیسے ممالک کو بیچ دیتے ہیں، اور یہاں کی بے وقوف حکومتیں چپ سادے بیٹھی رہتی ہیں، نہ قانون سازی کرتی ہیں، نہ اس ٹریڈ کو ریگولرائز کرتی ہیں۔ چائنا اور انڈیا میں اس حوالے سے باقاعدہ قانون سازی ہو چکی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں لوگ کہ کروڑوں روپے سالانہ ضائع کرتے ہیں، یہ یوزڈ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس خرید کر لے آتے ہیں، اس میں سے 15، 20، 25، 30% چیزیں، پرزے نکال کر باقی سارا تلف کر دیتے ہیں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں، جو بذات خود ایک بہت بڑا انوائرمنٹل ہیزرڈ بنتا ہے۔ انتہائی زہریلی گیس پیدا ہوتی ہے اس میٹیریل کے جلنے سے۔ آج اس حوالے سے ہم نے محکمہ ماحولیات کے ڈمی وزیر اور سیکرٹری کو دعوت دے رکھی ہے۔ کیا حال ہے جناب آپ کا؟ یہ اللہ دا بڑا شکر ہے، احسان ہے، تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ اور سر اصل میں چوہی صاحب تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہیں جانے آنے میں، اس میں کیوں ہیزیٹیٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ زیادہ تر ہارس اینڈ کیٹل شوز یہ اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ جی، یا کتے دی دوڑتے جاندے نے جی، وہ تے چیف گیسٹ ہوندے نے۔ اچھا میں چودھری ہوں، میں کو تھوڑا رکشے والا نہیں ہے۔ ریچ تے کتے دی بھیڑ بڑے شوق نہ ویکھدے نے۔ اچھا، ریچ کتے لیٹ ہو جانے تے آپ ہی بھیڑ پیندے نے۔ کس کے ساتھ؟ کتے نال اور کدے نال؟ میں پٹھے آپ دی چپیڑ مارنی تینوں۔ اچھا جناب، الیکٹرانک ویسٹ کے بارے میں آپ دونوں کیا جانتے ہیں؟ اے جناب چوہی صاحب تم تو قیامت تک نہیں پتہ لگنا، میں نے آپ تھوڑا جتنا پتہ ہے۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یقین کریں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ سر یہ میں الیکٹرانک ویسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں نا، یہ ٹریجڈی ہے کہ سیکٹری کو نہیں پتا، وزیر کو نہیں پتا کہ یہ ایکچولی مسئلہ کیا۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ آپ کے ایمبٹ میں آتا ہے، آپ کے محکمے سے متعلق یہ بات ہے؟ جناب میرا ڈپارٹمنٹ نا بڑا بہترین کام کر رہا ہے۔ کیا بہترین کام؟ بڑے پروجیکٹ لا رہے ہیں جناب، چنیوٹ پارک بنا رہے ہیں۔ وہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ تے چور صاحب پکوڑے لاؤن گے جی، خود لگائیں گے؟ جی ہاں۔ دیکھو چوہی صاحب نے کسی سے یقین نہیں، لہٰذا وہ ساری ٹیک کیئر چوہی صاحب آپ کرن گے، بلکہ بعض اوقات چوہی صاحب پنگوڑا خود بھی بن جاندے نے، اور ایڈا اچھا پنگوڑا بن دے رہا چوہی صاحب پلیز بن کے تو آؤ ذرا۔ میں رستے چ 4 بار اتن بن کے بکھایا ہے۔ سر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور چیز ہے، الیکٹرانک ویسٹ اور ہے۔ سر آپ رنگ روڈ گئے ہیں؟ ہاں جی میں گیا ہوں۔ محمود بوٹی کی بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں تو ایک پہاڑ بنے ہوئے ہیں کوڑے کے، وہ ہم لوگوں نہیں لگائے ہیں سر۔ جی ہاں جی، وہ دے چو ثابت جوس لب جاندے نے جی، یقین کرو۔ 1.5 لیٹر دی بوتل لب جاندی ثابت گرما، پر چوہری صاحب نے میں دھو کے کھوایا جی۔ چوہری صاحب نے جڑی جُتی پائی تسی کہ سمجھے خریدی ہے، بچوں لبی ہے جی۔ میں اتھے سونا، وہ تو کھا کے لے آیا۔ پوری دنیا میں جہاں انہوں نے اپنی الیکٹرانک ویسٹ ڈمپ کرنی ہوتی ہے، پاکستان ایک بہت بڑا ویسٹ یارڈ بن گیا ہے۔ تو اس کے کیا اثرات ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، آپ کو کچھ پتا ہے؟ نہیں
तो सेक्रेटरी आप काहे के हैं? सर मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? और आपका इंटरेस्ट क्या है? मैंने सोचा था मुझे हेल्थ मिलेगा, मैंने इसके लिए बहुत सी सिफारिशें भी करवाई, फिर मैंने कहा चलो मुझे CNW ही दे दें, लेकिन नहीं। ओए बुटिया, जी आखा ओए केड़ी वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक? ਆ ਨੈਲਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ, ਆਏ ਛਾਣ ਬੂਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਆ मैं तो सेक्रेटरी साहब तुम इसलिए ले आंदा है ताकि इन्हें थोड़ा समझा सको। अच्छा जी, आपने इसका हलफ उठाया ना? उठाया है जनाब। तो आपको पता था कि महकमा क्या है? नहीं, मैं का वजीर लगता, मैंने की महकमा केड़ा है? वजीर है मैं बस। मैंने तो ये समझ नहीं आ रही भाई, पुरानी चीज का फायदा ही है, थोड़े पैसे खर्चो, नुकसान तो नहीं ना। डॉक्टर साहब, आपको तो ये तक नहीं पता कि ये आपके महकमे से मुताल्लिक है, इससे वाकई नुकसान होता है। किस तरह जी? ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, बताइए हम जैसा। वजीर मोहतरम, आपको याद होगा पुराने टीवी कितने बड़े हुआ करते थे। चौधरी आप निक्का है, बड़ोले जिड्डा ते आप है। और कोई तुम चौधरी के बारे पता हो? जी जनाब। फिर LCD टीवी आ गए, उसके बाद LED टीवी आ गए हैं। ये LED टीवी पुराने टीवी की निस्बत 5 गुना कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये फर्क आपके नेशनल लेवल पे पड़ेगा। जब आप सब चीजें नहीं लेके आएंगे तो आपकी लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी। ए बंदा मेरे नाल होना चाहिए, ए तो मेरी खच दी खच है। जैसा मेरी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं CNW जाना चाहता था। और क्या CNW करप्शन करनी थी वहां जाके? यस सर, करप्शन करनी थी। और क्या करनी थी वहां पर आपने? नहीं, ये भी मैं नहीं मानता। CNW में जो जाता है जरूरी नहीं कि वो, मैं ऐसे ऐसे सेक्रेटरीज को जानता हूं जो बेहतरीन ऑफिसर्स। वैसे चौधरी तेरी शक्ल तो नहीं लगता तो वजीर है। ये तो मैं 20 बार आख्या मानता ही नहीं। अच्छा जनाब, सवाल ये है कि इस मसले का, क्योंकि ये अपनी नौयत का बिल्कुल नया मसला है, तो क्या हल क्या है इसका? फौरी तौर पे एक तो कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद सर, जो भी इंपोर्ट हो रही है उसको चेक किया जाना चाहिए कि आया वो स्क्रैप है या वाकई सेकंड हैंड चीज है। जब तक आप चेक नहीं करेंगे। अब जो स्क्रैप आता है तो अंडरस्टूड है कि वो सेकंड हैंड है, नहीं होता तो उसे काबिल अमल बना देते हैं। जैसे स्क्रैप एक डिफरेंट चीज है, स्क्रैप को स्क्रैप ही बिकना चाहिए। यहाँ पे स्क्रैप की चीज जो है वो तो सेकंड हैंड बिक रही है। और इसके SOPs तय होने चाहिए कि जो लोग इस बिजनेस में हैं, अभी तक ये बिजनेस मादर पिदर आजाद है, इस बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, इस पे टैक्स लगना चाहिए। अच्छा जी, होता ये है कि ये स्क्रैप के भाव लाते हैं, बराए नाम ड्यूटी होती है ना होने के मुतरादिफ, उसको फिर रिफर्बिश किया जाता है, और वो ड्यूटी जो कई गुना ज्यादा हुकूमती खजाने में जानी चाहिए वो इनकी जेबों में जाती है। ए भाई जी, चैनल है तो कितने पैसे देंदे ने? क्यों अब मुझे रखना सेक्रेटरी? मैं कहना सूफी ने गोली मारो, तुसी मेरे नाल आ जाओ। मुझे सेक्रेटरी रखना? नहीं नहीं, ये दी जंग ते। जी ਉਹ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੈ? अच्छा सामान इलेक्ट्रॉनिक का मंगवाना आलू है। ये दुकान वाला लगता ही नहीं, लगता कंप्यूटर जो कार्टून निकल के बैठा है। और करोड़ रवाना वाले तुमको पता है कुछ करोड़ रुपए का कारोबार है, करोड़ रुपए का। ये पता क्या करता है? क्या सर? ये यहीं से गली मोहल्लों से इकट्ठे करता है टूटे फूटे कंप्यूटर्स और शो करता है जी मैं अमेरिका से मंगवाता हूँ रिफर्बिश्ड। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? हाँ जी, कौन? ਇਹ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। अच्छा, ਅਸਲ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪੇ। Hey man, what's your problem? No worries, no problem. अरे अंग्रेज तो के गल करे तो मेरे फाड़ लेना। अच्छा तो ये सब कुछ मंगवाते हो, ये जो एक मेज पे पड़ा है? ऐ तो कुछ भी नहीं, वेयर हाउस असल पीछे वे गोदाम भरे में ने वे कुछ आगे। ओए होए, अव्वल तो ये झूठ बोल रहा है, गोदाम शुदाम कोई नहीं होंगे, ये 2 नंबर आदमी है, और अगर ये मंगवा भी रहा है ना तो बेड़ा गर्क कर रहा है, वो स्क्रैप यहाँ पर डंप कर रहा है जिसे पूरी दुनिया कोई कबूल करने को तैयार। ये बताएं कि आप वारंटी क्यों नहीं देते अपनी चीजों की? कोई बंदा साबित कर दे मैं वारंटी नहीं देता। सर दरअसल करते ये हैं कि चीजें बेच देते हैं, उनमें से जो क्लेम आता है उससे फिर निगोशिएट करते हैं उस शख्स से, उनसे पैसे तुड़वा लेते हैं और किसी को देते हैं, किसी को नहीं भी देते। और सबसे बड़ी बात, आप मुझे ये बताएं, आप कितना टैक्स देते हैं? कौन है आप। उस टैक्स किने देना है? हजूर इतनी इनकम होवे तो बंदा टैक्स देता है। तो ये जो पीछे पूरा वेयर हाउस खोला हुआ है वो? सारे जो भी कुछ नहीं, वो भी एम ही है, बस इतने लोगों की खिदमत कर अच्छा, रहे ये हैं। कौन है ये जो चल फिर रहा है? ये क्या मनहूस सा आदमी? वो तो खड़ोदा करे कुछ चपेड़ा खानी है मेरे को। Hey, पंजाबा नहीं आਉਂਦਾ, पंजाबा नहीं आਉਂਦਾ। बड़ा तेरा गरमाले वर्गा मुंह है। Yes, yes. Okay. अच्छा अंग्रेज ना किसी को जुगता ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा वो अंग्रेज लगता दाढ़ घटाउण आया।
यार ये दोनों कौन है? आई एम अमेरिकन मैन, अमेरिकन। और मैं जड़ा सर ये जुल्म भी करते हैं कि चाइना की चीज पर यूएसए का टैग लगा के उसको बेच देते हैं। भाई तो कोई नवी ले ला, सानू को मुसीबत च पाया। नहीं वैसे वाकई शर्म की बात है कि यूएस का टैग लगाते हो चाइना की चीजों पर। सर जो चाइना ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, यूएसए ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं है, चुगलखोर रिसर्चर ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ है? अच्छा ये कहाँ का है, अमेरिका का है कि चाइना का है? बाबा जी कंप्यूटर की दुकान तो दम कराना है मेरे को। सर इस जैसे लोग जो हैं उन्होंने बच्चों को इस काम पे लगाया हुआ है कि आप स्क्रैप जलाएं, प्लास्टिक जल जाएगा, जिसमें से लोहा या उसमें से तांबा निकलेगा, आपको उसके बस पैसे दिए जाएंगे। और बच्चे मैं तेरी गल एक मिनट भाजी, एक मिनट मैं तेरी गल दसा, मैं तेरे लम्बे पाले तो मैं कुटना ही, मैं नहीं तेन रिसर्च बना। तो मुझे क्या मारोगे? मैं तुम्हारे खिलाफ मीडिया कैंपेन लॉन्च करूंगा। इत्थे कोई नेड़े तेड़े साहब ही फड़क नहीं सकता, मैं तो दसा। क्यों साहब? बड़े बड़े खेत में, बड़े बड़े खेत में। यार बात सुने, आप जो बैठे हुए हैं आप अंग्रेज हैं? उन्हें तो मैं की जवाब देवां? कोई सवाल है सही? इतनी देर मैं अपने आप ढक के बैठा रहा ना, तो मैं जानता या मेरा अल्लाह जानता है। पहलू अंग्रेज भी स्क्रैप निकला है जी। तो बात सुनो, इसने तुम्हें अंग्रेज बना के बिठाया हुआ है। तो होर तुहानू की लग रहा है चुड़ेला बैठी हैं? ये करता क्या है इससे? भाई जी इन्हें सानू दिहाड़ी ते रखा है, मैनू तो इसको सिर्फ एक किधर गया है 250 रुपए देंदा, सवेरे अंग्रेज बना के बिठा देंदा, असी शाम तक अंग्रेज ही है। अल्लाह की कसम साडा ढोलक वाला बाहर बैठा है। वैसे तो असी मौत दे खूह ते नचदे हैं। तुम्हें फोन बार बार कहां से आ रहा है? सारे ढोलक वाला कर रहे होर मैनू डीसीओ का फोन आना जी। तो क्या करता है वो कहता बाहर आओ फंक्शन पे चलिए। सर इसके खिलाफ मैं सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करूंगा, इसकी 2 नंबर के खिलाफ। यार गल दस, ये चैनल तेन किन्ने पैसे देंदा? जितने भी देते तुम्हें इससे क्या गरज है? इतना डबल पैसे थे मेरे को आ जाए। बड़ी डिमांड है, तू तो हथों हथी वेख रहे हैं यार। हाँ भी गुजरिया ओ खुसरी, मैं तो मोटरसाइकिल चलाना उत्थे। ये 2 गाने तो बाद फिर मेरा आइटम होंदा है उत्थे। तुम्हारा आइटम जो है वो मोटरबाइक, मोटरसाइकिल दा। हाँ जी, कई बार तो खूह चो बाहर निकल गया जी। अच्छा कभी गिरे भी हो? वो सर डिगे तो खुसरा होया। आफ्ताब साहब मुझे इन पे बहुत गुस्सा है, मैं चाह रहा हूं इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए पुलिस के अंदर। आप सबसे पहले तो इनके यहाँ कैमरा भेजिए। एक भाई पिछू अन्ने वाह हमले करी जा रहा है। ओए ओ मेनू कितड़ियां दे जांदा है साफियां दियां, ओ मराते बली ते मुंह वाला। सर मुझे मेरी गल सुनो, और दिन बना करा एक इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की वेयर हाउस पर लिए चलते हैं जहां पर ये शख्स चोर बाजारी लगाए हुए है और लोगों को लूट रहा है। ठीक देखिए कह रहे मैं हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, जो ये आप नाकाबिले इस्तेमाल किस्म की चीजें बैरूने मुल्क से मंगवाते हैं और उन्हें रिपेयर करके आप आवाम से महंगे दामों जो उनको बेचते हैं, तो इसकी वजह क्या है? आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? थक जाओगे, बह जाओ जरा। देखें प्लीज आप चुप रहिए। मैं कह रहा जरा बह जाओ। ओ खुश रहा, मैं नहीं हूं। मैं तो मोटरसाइकिल चलाना, मैं बाइज्जत आदमी हाँ। मोटरसाइकिल ते खुसरिया दी बर्फ लिया जी। आओ ना बैठो जनाब, इत्थे बैठो। उतरो 2 बोतलें ले ठंडियां जल्दी। अच्छा जी, अच्छा जी। देखिए आप एक जर्नलिस्ट को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाज़रीन आपको बताऊं कि ये जिन सिफत इंसान जो मासूम बच्चों से ये स्क्रैप का माल जो है ये जलवाता है, अच्छा और यहाँ उसके बाद इंटरव्यू कर ला तो यहाँ जुगता कर ला, ठीक है? तुम पर तो चाइल्ड लेबर का भी मुकदमा होना चाहिए, गेंडे। क्यों जी? दूसरी ऐसी कोई इंटरव्यू जी दूसरी जुगत जे। मैं इधर हो जाऊं किधर मेरी मगरमच्छ ना कह देवे। अच्छा सर कोई सादा लैजिस पर ही सवाल करो जुगत बगैर। मेरा तुमसे सीरियस सवाल है और सीरियस जवाब देना कि तुम जाली वारंटियां क्यों देते हो आवाम को, किसी आबदोज के बच्चे। तीसरी हुई जनाब अली। जी एंकर जुगत बेस से भर्ती हुई। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिन मुलाजमों को आपने अपने पास काम पे रखा हुआ है उनको आप क्या सैलरीज देते हैं? क्या डेली वेजेस पर उनको रखा हुआ है या क्या उनको मंथली पे करते हैं आप? ते जुगत किथे गई? ये जो आपने अपने साथ 2 बहरूपिये रखे हुए, मैं इन पर भी मुकदमा चलाऊंगी। यकीन जानो बहरूपिया ओ है, मैं तो हाँ ही हो गया। मेरी तो अम्मी रोमानिया दी आई। मैं तुमसे
जानना चाहती हूँ अब तक तुमने कितना टैक्स पे किया है? एटम बम के बच्चे। जी मेरे हिसाब नाल कहंडा ही ठीक सी। अच्छा टैक्स दे ना दे, बच्ची नूं 200 दे, बड़ी अच्छी जुगत की। और को तुहाडा सवाल मैं जुगत मैं तुमसे जानना चाहती हूँ इस कारोबार का लाइसेंस है तुम्हारे पास? कद्दू सिफत इंसान समझे, हो सकता बच्ची ना ही हो जुगत। सवाल तो खाली ना जाएगा। अच्छा मैं सूफी साहब ये बच्ची किसी पंड चैनल तो भेजी जे बहुत जुगत भाजी ए मैनू फड़ा दे, तुसीं मैनू कोई जुगत कर लो हैं।